Good morning everyone. In today's video, we will be discussing the directive principles of state policy given in part 4 of the Indian Constitution Act 1950. Now, moving on to the Article 36 definition. In this part, unless the context otherwise requires, the state has the same meaning as in part 3rd. जैसे मैं हमेशा बिगनर्स के लिए बनाती हूँ वीडियो, क्या पता उनके पास बेयर एक्ट ना हो, तो स्क्रीन पे दे रखा है, आप उसको मेरे साथ साथ रीड कर सकते हैं. ठीक है. आर्टिकल 37 application of the principles contained in this part. The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. Article 38, state to secure a social order for the promotion of welfare of the people. अब देखिए 38 सबसेक्शन 1 क्या कहता है. द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life. Now moving on to the Article 38 subsection 2. The state shall in particular strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations. तो अभी तक हमने आर्टिकल 36 पढ़ा, आर्टिकल 37 पढ़ा और आर्टिकल 38 पढ़ा. ठीक है. अब मूविंग ऑन टू द आर्टिकल 39, certain principles of policy to be followed by the state. The state shall in particular direct its policy towards securing 39 clause A that the citizens, men and women equally have the right to an adequate means of livelihood. B. That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. C. That the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. D. That there is equal pay for equal work for both men and women. E. That the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength. Clause F. That children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment. Now, ये तो सिर्फ आपको एक बेयर एक्ट की रीडिंग करने की ज़रूरत है 36 से लेके 39 तक. बेसिकली इनमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं हमारे कोई भी एग्ज़ाम में. मैंने जितने भी एग्ज़ाम अभी तक अपेयर किए हैं, मैंने प्रीवियस ईयर अगर देखा जाए तो आप देखेंगे इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं. आफ्टर आर्टिकल 39 क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होते हैं. हाँ, तो आपको बस सारे आर्टिकल्स इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि वो कभी भी आपको कोई भी आर्टिकल में से पूछ सकते हैं. तो अभी तक तो मैंने सिर्फ 36, 37, 38 और 39 की रीडिंग की है. आप भी एक बार इसको रीड कर लीजिए. मैंने स्क्रीन पे भी डाला है अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है, और आप इजीली इसको समझ सकते हैं. अब 39A से हम ध्यान से आर्टिकल पढ़ेंगे और उसकी एक एक बात को समझेंगे. 39A वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड कहाँ दिया गया है, तो आपको बताना 39A में. ये आपसे वो मैचिंग में पूछ सकते हैं. वहाँ भी आपको याद होना चाहिए कौन सा आर्टिकल कहाँ आता है, कौन सा आर्टिकल कौन से नंबर पे है. तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है.
Equal justice and free legal aid. The state shall secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. इसमें ये कहा है कि हमारा प्रियम्बल ये बताता है कि वी आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉज. हम कोई भी रिलीजन के हों, कोई भी रिलीजन फॉलो करते हों, बट वी शुड गेट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफ्रेंशिएशन और डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द रिलीजन, सेक्स, कास्ट एक्सेट्रा. तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड क्या कहता है कि आप सबको जो है इक्वल माने, चाहे आप कोई भी धर्म के हों, आपको सबको क्या मानना है, बराबर मानना है. अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने दिया जाए, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो. तो प्रियम्बल यही क्या कहता है कि वी ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. नाउ मूविंग ऑन टू द आर्टिकल 40, organization of village panchayats. Very important article. The state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government. विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिससे छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज कर सकें और उनकी पावर्स अथॉरिटी को जो है मेंटेन करके उन्हें बता सकें, जिससे उनकी एक अलग अपनी जो है सेल्फ गवर्नमेंट बन जाए. 39A and 40 are very important articles. 39A is equal justice and free legal aid. 40 organization of village panchayats. Now moving ahead, Article 41, right to work, to education and to public assistance in certain cases. The state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provisions for securing the right to work, to education, and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, disablement, and in other cases of undeserved want. तो स्टेट क्या कहता है, स्टेट का हम कंफ्यूज होते हैं कि स्टेट कौन सी स्टेट. यहाँ पे स्टेट को कंट्री लिया गया है, इंडिया एज इंडिया. स्टेट क्या बोली गई है कि पूरी जो है हमारी इंडिया है. स्टेट जो रिप्रेजेंट कर रही है वो हमारी कंट्री इंडिया को कर रही है. यहाँ पे कभी आप पर्टिकुलर स्टेट समझें, ठीक है. तो आपको ये बोला गया है कि जैसे मैंने आपको उसमें भी बताया था 40 में भी, आर्टिकल 40 में भी, आर्टिकल 41 में भी एक कहा गया है सबको वर्क पाने का अधिकार है, काम पाने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है और सबको जो है पब्लिक असिस्टेंस मिलेगी. पब्लिक असिस्टेंस मतलब क्या होगा, ऐसे नगर पालिका की सेवा, आपके जो और भी चीज़ें हैं, पार्क्स हो गए हैं और फैसिलिटीज़ हो गई, डिफरेंट एम्यूनिटीज़ हो गई, सबकी सुविधा मिलेगी, चाहे आप रिच हो, चाहे आप पुअर हो, चाहे आप मिडिल क्लास हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, आपका हक है इक्वली सब कुछ पाना. ठीक है, इरिस्पेक्टिव कि आप कौन सी क्लास से हैं. जैसे सपोज अगर शौचालय बन गए हैं कहीं, पब्लिक टॉयलेट्स कहीं बने हैं, पार्क्स बने हैं, तो उनको सब एक्सेस कर सकते हैं. ये नहीं है कि वहाँ पे लिख दिया जाएगा ओनली रिच पीपल कैन इन्वॉल्व इन दिस, ओनली दिस रिच पीपल कैन एंटर इन दिस पार्क. ऐसा नहीं होता, कोई भी वहाँ जा सकता है, उसकी सुविधा ले सकता है. नाउ मूविंग ऑन टू द आर्टिकल 42, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन conditions of work and maternity relief. The state means India shall make provision for securing just and human conditions of work and for maternity relief. Maternity relief में आपको होता है कि आप जब आपको दी जाती है 6 महीने की मैटरनिटी लीव, ठीक है, बच्चा होने के बाद, हाँ, और उस दौरान आपको पैसे दिया जाएगा. मतलब आपको जॉब से नहीं हटा सकते, उस दौरान आपको पैसा दिया जाएगा और माना जाएगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द 43, लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स. द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर बाय suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers
agricultural, industrial, or otherwise work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life, and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities. And in particular, the state shall endeavour to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas. इसमें आपसे ये क्या कह रहा है कि हमें सबके राइट्स को सिक्योर करना है और सब वर्कर्स को काम देना है, जिससे वो अपने वेजेस कमा के अपने घर को का भरण पोषण पालन पोषण कर सकें, क्योंकि सबके पास हक है एक अच्छी लाइफ जीने का। तो और हमारा ये स्टेट का ये भी फ़र्ज़ है कि हम कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें और कोऑपरेटिव बेसिस पे रूरल एरियाज़ में लोगों की हेल्प करें। तो ये जो मैंने 39A, 40, 41, 42, 43 आपका ऐसे आ जाएगा। आपको एक साइड दे देंगे कोई भी आर्टिकल 39A, 41, 42, 43 ऐसे दे देंगे, उसको आपको मैच करना होगा। दूसरी साइड लिखे होंगे आर्टिकल्स के नाम। आपको जब तक ये नहीं पता होगा कौन सा आर्टिकल कौन सा है तो आप नहीं लिख पाएंगे और ना ही मैच कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए 39A कौन सा आर्टिकल है, 40 कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 41 कौन सा है। लेटेस्ट रिवाइज 39A कौन सा था, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन एरियाज। 42 provision for just and human conditions of work and maternity relief. 43 living wage etc. for workers. Now for जैसे 39 के अंदर 39A था ऐसी 43 के अंदर 43A है, ज़्यादातर ऐसे पूछ लिए जाते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। The state shall take steps by suitable legislation or in any other way to secure the participations of workers in the management of undertakings, establishments or other organizations engaged in any industry. तो आपसे इसके अंदर का नहीं पूछेंगे, आपसे क्या करेंगे, आर्टिकल दे देंगे और आपको मैच द कॉलम में करना होगा कि कौन सा आर्टिकल किससे मैच हो रहा है। उसी के हिसाब से आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे और आपको मैच करने हैं, ठीक है। वहीं से आपके ये मार्क्स पक्के हो जाएंगे, क्योंकि MCQs जो हैं मैचिंग में काफ़ी आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये भी होता है जब हम एक एक आर्टिकल पढ़ते हैं तो उनके केस लॉज भी हमें पढ़ने चाहिए, क्योंकि केस लॉज भी कभी कभार पूछ लेते हैं वो नेट के एग्ज़ाम में, आपके UPAPO में। सब UPAPO में कॉन्स्टिट्यूशन तो खैर नहीं आता है, बट ये पॉलिटी का भी सब्जेक्ट माना जाता है, तो आपसे पूछ लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं 43B। ऐसे 39 में तो सिर्फ 39A था, 43 में 43A और B दो हो गए। 43A कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 43B कहता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 43B कहता है कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अगर प्रमोशन करना है, उसको प्रमोट करना है, तो हमें उसको अच्छे से फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ऑटोनॉमस पावर देनी पड़ेगी, उनकी खुद की पावर, अपना डेमोक्रेटिक कंट्रोल और एक अच्छा मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रेगुलेट करे, ठीक है। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल 44 आता ही आता है ज़्यादातर सारे एग्जाम्स में। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सब जगह एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चलेगा, और वो कौन से आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल 44 में। नाउ आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years. The state shall endeavour to provide early childhood care and education for all children and they complete the age of 6 years. सबको हक है, चाहे वो below the age of 6 years हो या ना हो, उसको चाइल्डहुड केयर पाने का और एजुकेशन पाने का पूरा हक है। ऐसा स्टेट में कहा गया, ऐसा इस स्टेट के लिए कहा गया है, इंडिया में कहा गया है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर and education for all children until they complete the age of 6 years. Article 46 कहता है promotion of educational and economic interests of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker section. The state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of this people and in particular of the scheduled caste and scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.
आर्टिकल 46 कहता है कि हमें एजुकेशन को ऐसे बनाना है, चाहे कोई भी कास्ट के हों, SC ST जैसे कोटा उनके लिए रखा गया है कि उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए उनकी कास्ट को देख के। तो उनको एक स्पेशल कोटा दिया गया है हर पेपर में, जो ये बताता है कि वो भी इक्वल हैं हमारे आइज़ ऑफ लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी इक्वल माने गए हैं। तो शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब्स हो, वो सोशल इनजस्टिस ना हो उनके साथ और उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो इसलिए उनको अलग कोटा दिया गया है SC ST एक्ट में। आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। The state shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties, and in particular the state shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medical purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health. हाँ, हम जैसे जो है अल्कोहल भी बेचते हैं स्टेट में, लोग लाइसेंस लेना पड़ता है, सिगरेट भी बेचते हैं, सब कुछ बेचते हैं क्योंकि उससे सरकार को टैक्स आता है। बट वो एक वार्निंग भी लिखते हैं कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, और कोई भी आप कोट कर देंगे कि ये खाने से ये हो सकता है, तो वो आपको क्या है, वो अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर रहे हैं, अपना जो राइट है वो पूरा कर रहे हैं आपको अवेयर करके। अब वो आपके ऊपर है कि आपको कंज्यूम करना है या नहीं। ठीक है, ये था आर्टिकल 47। नाउ कमिंग ऑन टू द आर्टिकल 48, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। The state shall endeavour to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and brought cattle. इसमें ये कहता है कि हमें ऐसे ऑर्गेनाइज करना है एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना है, जिसमें जो है प्रिजर्व करके रखनी है अपनी ब्रीड्स को, काउस को, गाव्स को और कैटल्स को, कि उनको काटा ना जाए और उनका मांस बेचा ना जाए, उन्हें हमें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। 39 में 39A था, 43 में 43A और B था ना, 48 में 48A है, जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो 48 और 48A दोनों मैचिंग में दे देंगे और उसके आगे उसके आर्टिकल्स दे देंगे और आर्टिकल क्या बोलता है वो दे देंगे, फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 48 ये 48A ये है। तो हमें ढंग से पढ़ना है। 48 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, 48A है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। The state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. इसमें से आपसे भी यही पूछ लेंगे कौन सा आर्टिकल है। 49 very important article, protection of monuments and places and objects of national importance. It shall be the obligation of state to protect every monument or place or object of artistic or historic interest declared by or order under law made by parliament to be of national importance from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export as the case may be. हमारी ड्यूटी है, आपसे पूछ लेते हैं ये DSP है या फंडामेंटल राइट है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब तक आपको पता नहीं होगा। तो आपको सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए, उनके आर्टिकल नंबर भी और आर्टिकल में क्या बोला गया है वो भी। तो ये हमारा 49 जो आर्टिकल कहता है वो DSP है कि मॉन्यूमेंट्स और अदर चीज़ों को अपना मान के चलना, अपना मान के यूज़ करना, वहाँ पे ट्रैवल करना, वहाँ पे घूमना, हमें अपना मान के, ये हमारी क्या है, स्टेट पॉलिसी का रूल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का। ठीक है, जब तक हम अपनी नहीं मानेंगे कोई चीज़ को तो हम उसको अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे। बट आपको भी पता है कि अमंगस्ट अस और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल डज नॉट कंसिडर इट, है ना, वो कंसिडर नहीं करती है, डू नॉट कंसिडर इट, सॉरी, हाँ मतलब वो नहीं करती है कंसिडर कि ये हमारा ही है। फिर भी DSP जो है में दे रखा है आर्टिकल 49 कि मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं उनको ऐसे यूज़ किया जाए, आपके लिए वो बनाया गया है कि जैसे कि वो हमारे ही हैं, तो हमारे ही, बट कुछ अपना समझ के उनको यूज़ किया जाए।
Now, Article 50, separation of judiciary from executive. The state shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state. Article 51, लास्ट कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? 36 से स्टार्ट किया था और लास्ट है 51. Promotion of international peace and security. It shall endeavour to promote international peace and security, maintain just and honourable relations between nations, foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized people with one another, and encourage settlement of international disputes by arbitration. तो ये था हमारा अगर हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करनी है तो हमारी स्टेट दैट इज़ इंडिया को ये सब ABCD क्लॉज में जो दे रखे हैं वो फॉलो करने होंगे. अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुरू से लेके एंड तक, कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्लॉजेज इंपॉर्टेंट हैं. हम एक बार देख लेते हैं. सेक्शंस नहीं होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, सेक्शंस नहीं होते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप. 36 क्या कहता था? डेफिनेशन. इसमें वो डेफिनेशन दी गई हैं और स्टेट का सेम मतलब है जो पार्ट 3 में कहा गया है फंडामेंटल राइट्स में. 37 एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट. 38 में स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल. 39 में सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट. 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लीजिए. 40 वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. 41 वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन एरियाज. 42 वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव. 43 लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स. 39A से लेके 43 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी आर्टिकल पूछा जा सकता है मैचिंग में या किसी भी फॉर्म में. ठीक है. 43 में दो हैं, 43A और B. तो आपसे पूछेंगे 43B क्या कहता है? तो 43B क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. और 43A क्या कहता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. ठीक है. 44 वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड. 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years. 46 एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर वीकर सेक्शंस का. 47 लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेज करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना. 48 जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं 48 और 48A में. 48 इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. 48A इज़ प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. 50 आर्टिकल सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. 51 इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. तो हमारी ये थी DSP जो पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में दे रखे हैं अंडर पार्ट 4. ठीक है. अगर किसी के पास बेयर एक्ट नहीं है या बेयर एक्ट वो अरेंज नहीं कर पा रहा है, आपकी सिर्फ स्टार्टिंग है लॉ की, तो और आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं, आप अभी बुक्स परचेज़ नहीं कर सकते, तो आप सीधा सिंपली ये बेयर एक्ट भी ख़रीद सकते हैं. ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, बट बेयर एक्ट पढ़ने का भी एक तरीका होता है जो हर किसी को नहीं आता है. इवन मैंने भी जब LLB की थी मुझे नहीं आता था बेयर एक्ट क्या होते हैं, कैसे पढ़ते हैं. मैंने भी LLM में सीखा है. तो आपको जहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिले सीखने की वहाँ आप सीख लें. जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप अपने आप को इंडल्ज करेंगे इन चीज़ों में, उतना आप सीखेंगे. ठीक है. तो ये 36 से 51 तक आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी थे. इससे पहले पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 19, 21 ट्राइंगल वाला जो है वो मैंने डिस्कस कर रखा है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ आप देख सकते हैं, चेक इट आउट कर सकते हैं. कोई भी क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कभी भी. ठीक है. तो जो DSPs और फंडामेंटल राइट्स का पोर्शन होता है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, DSPs पार्ट 4, वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. इनसे एक आधा क्वेश्चन बन के आता ही आता है, गारंटीड आता है. ठीक है. तो ये आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने, है ना. अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं भी है तो मैंने स्क्रीन पे शेयर करे हैं फ़ोटोज़, आप वहाँ से पढ़ लीजिए. जो बुक है आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं.
बस मेरा ये मोटिव था ये वीडियो शेयर करने का, आपको पता चल जाए कि कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से हमें याद करने हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कभी कभार हम जल्दबाजी में ना इम्पॉर्टेंट चीज़ ही भूल जाते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ ही करना भूल जाते हैं। तो इसलिए मेरा यही मोटिव है इस वीडियो को बनाने का कि आप लोग समझें कि पार्ट 3 और पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज डीएसपी। क्योंकि वो पूछ लेते हैं आपसे कि कोई भी आपको दे देंगे ये इधर डीएसपी है और फंडामेंटल राइट है, तो आप कहाँ से पता लगाएंगे? जब भी तो पता लगाएंगे जब आपको आर्टिकल पता होगा, ठीक है, जब उसके आर्टिकल की हेडिंग पता होगी, आप जब भी तो पता लगा सकते हैं उसे, वरना आप पता ही नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए आर्टिकल्स और उनकी हेडिंग पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आगे जो हम वीडियोस लाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और कोई भी गड़बड़ी लगती है, कोई भी इसमें लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या हिंदी में समझाना चाहिए या कुछ भी नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बट प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिएगा, पॉजिटिवली हम्बल वे में आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ बेयर एक्ट में कौन सा आर्टिकल कौन से नंबर का है, क्या लिखा है, ये पढ़ा है आप उसको देख सकते हैं। आई नो हिंदी वालों को थोड़ी दिक्कत होगी, बट जब उन्हें आर्टिकल पता चल जाएंगे ये इंपॉर्टेंट है, तो वो उसकी हिंदी भी गूगल से निकाल के पढ़ सकते हैं। अगर बेयर एक्ट नहीं है, अगर बेयर एक्ट खरीद लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास MP जैन है कॉन्स्टिट्यूशन की या कोई और भी बुक है अच्छी, तो आप उसमें से भी रीड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी आपकी क्वेरीज़ हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमने पहले बनाई थी, हम भी पहली वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी, जो हमने पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में बनाई थी। फिर मैंने पार्ट 2 में सिटीज़नशिप में, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिए थे, आर्टिकल 14, 19, 21। आज काफ़ी टाइम बाद जाकर मैंने ये वीडियो आपकी बनाई है आपकी DSPs पे, पार्ट 4 पे, ठीक है। पार्ट 4 होता है DSPs, DPSPs, DSPs बोल देती हूँ मैं इनको, DPSPs डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फिर पार्ट 4A आ जाता है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे मिलते हैं वीडियोज़ पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।